we need to introspect. Number one, we all should introspect as to what went wrong, possibly that is beyond our control, one thing, right? But certainly what we can do from that introspection is that what can we get out of this introspection, or what can we learn out of this introspection. Giving my own example, because you know yourself better than anyone else, and I'm sure this holds applicable for all of us in our individual capacity, that we have evolved in the past 45 days. At least I have evolved more than I have evolved in the past 5 years, if I may say. I have evolved more in terms of my learning capability, in terms of my, if I may say, survival instincts. I have never stayed back at my home, which is at my, so I was in a hostel after my 12th. So I never stayed at my home for past 60 days ever at a stretch, right? So for me, or for all of them for that matter, right? है ना? तो एक छोटा सा format workout करते हैं. I will like to do a quick presentation for 20 odd minutes, which is my observation of the thing when we are saying this, what has happened. Why should we not be wasting a crisis? That is my, it won't be very, very longish, but it will be very, very sharp, if I may say, because I personally do not believe in presentation style, right? I usually say this, and I'm repeating it, and if you have heard this, avoid it, that who uses PowerPoint presentations? Have a point of view, or are they powerless, use PowerPoint presentation, right? So I personally believe I have a point of view, and sometimes you have to take an aid in form of a presentation, hence you're using it, okay? So I will also request Neelam to help me share my screen, because I'm not in, so I'm, yes, so I'm usually the guy who moderates a session. So I have all the powers, otherwise today I'm feeling a little helpless, because I have to do this to you largely. Never mind, but that's the good way of doing it. Sir, now you can share. You can share. Okay, so as I was talking about the structure of this, today's 40 odd minutes which we have with us is, number one, I'll run you through a presentation which is broadly my observation of this scenario. Number two, and obviously it's related to all of us. It's not that I'm making any other observation. Number two, we will keep all our questions aside, which is, I'm sure at every point you'll have a question which will come in your head. But then I think let's park that for the last half of this presentation, where you have all the Q&A largely, okay? Instead of coming in between, because that will largely create disturbances for us. Well, that is there. And please use the chat box. For example, there's a chat box available for us. The important part is that the chat box usually gets lost in when 140 or 100 people are messaging you, okay? So there may be a wonderful point, but if you put it on a chat box, I may really not be able to appreciate that point. So you have a question, ask me, let's have a dialogue later once I'm done with it. Don't worry, I'll make this very, very quick with respect to my presentation. So I'll quickly dive into my presentation so that we start, I can, just hold on. Just hold on. Okay. Yeah. So here's a very crisp presentation. So don't worry. As I said, I've done this many a time. So this shouldn't become really more of an interactive session than a presentation. So this is what I said, right? This is what we are talking about. At the end of the day, this is what my idea is, that don't waste a crisis is the topic of our session. Now, let's understand this at the very first place. What is crisis? Right? We all may have a very different definition of a crisis, but let's, for very simplified version, understand. The word crisis
in Chinese language is a combination of danger and opportunity. And in fact, this was said by Kennedy in his 1959 speech. In fact, crisis is not about danger, it's actually about opportunity as well. And I'm sure of that every one of our leaders here who's present in this presentation is all about opportunity. Certainly, it presents a lot of danger to us, to our health, to our society, to our planet Earth. But having said this, we have a certain, in a way, we are beyond our capabilities, beyond taking our own good self. We cannot really negate that danger to a major extent, if I may say. What we can really do with is something what I personally believe is a second term, which is opportunity. That it actually is a major or a huge opportunity for all of us. If I put it in what terms? To reinvent ourselves. It is actually an opportunity to reinvent, re-evolve in whatever we were doing. It actually has given a very timely pause to think through, were we doing whatever we were doing wrong, or can we improve on? All these three things can be put together at once beside each other, which is, were we doing whatever we were doing right, or we were doing it wrong, or can we do it better than whatever it was, right? So I think that's the beauty of this crisis. This is why I feel and I say that let's not waste this crisis at all. And please understand this, ladies and gentlemen, please put this through a prism of your individual understanding. आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या देख रहे हैं मैं आपको बताता हूं. मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करूं. इस पे आपको ये प्रेजेंटेशन देखना है कि ये मेरे लिए कितना रेलेवेंट है. आप अपने कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए इसको अडॉप्ट करिएगा. शायद इस प्रेजेंटेशन के बाद आप सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे ले जा पाए जो कि आप इंप्लीमेंट कर पाए. मेरा वो मानना है. किसी भी प्रेजेंटेशन की खूबी क्या होती है या नाखूबी क्या होती है, दोनों समझिएगा. खूबी होती है when you can take away 1 point but yet you can implement it, number 1. और नाखूबी वो इतना कि आप उसका कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओ, वो यूजलेस होता है मेरे हिसाब से. इसमें उतारना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा. दैट इज द वे, आई मीन दैट्स द वे आई हैव gathered whenever I attended any national or international program. This is always I have believed that only just try to take few things along. I'm sure all of you are carrying a notepad or you're digitally typing it somewhere. Please ensure that आप उसको जरूर. चलिए, जब अगर हमने अब ये एस्टैब्लिश ही कर लिया कि क्राइसिस का मतलब डेंजर होता है या फिर अपॉर्चुनिटी होता है, तो हमने अब किस तरफ जाना है वो हमने डिसाइड कर लिया. So let's move ahead and understand this a little more better. Okay? हाँ, अब थोड़ा समझिएगा. मैं आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव तक बात को लेकर आएंगे. ग्लोबल पर्सपेक्टिव को हम भूल नहीं सकते. हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के पार्ट हैं, चाहे हम कहीं भी बैठे हो. आज वही व्यक्ति दीमापुर में बैठ के भी इस प्रेजेंटेशन को उतना ही गेन कर सकता है जितना कि एक व्यक्ति भोपाल में बैठ के उसको गेन कर सकता है. चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे वो दीमापुर में या भोपाल में बैठा हो, सब कुछ सेम है. एवरीथिंग इज सेम टू अस, राइट? बट उससे बियॉन्ड क्या देखना है? प्री सेल फोन्स एरा, एम्प्लॉय companies, citizens, जिसको बोलते हैं हम लोग, right? Institutions, societies have sampled the power of digital in the last 30 days. बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब ने जूम को यूज करना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है दोस्तों. ये आप सबको मालूम है, मुझे मालूम है. ये डाउनलोड करना ये व्हाट्सएप जैसा है. जैसे हमने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया, ऐसे तरह हम जूम को भी कर सकते हैं, right? But the important part is converting that into habit is the biggest opportunity for all of us. यानी कि जो आज हमारी लर्निंग्स हो रही हैं, इसको हम कैसे एक हैबिट के अंदर, न्यू हैबिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट? नेक्स्ट, ऑफ कोर्स
हमें मालूम है जब ये क्राइसिस है, जहां हम इसके डेंजर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इसके साथ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये जो आप लोग। इम्पैक्ट यूएसए और यूरोप तो एक तरह से शैटर्ड हो गए, मतलब 2-2 साल, एक से एक साल आप सभी सुन रहे होंगे स्कूल एक बंद हुए यूएस के अंदर। कैम्ब्रिज ने बोला है सारी पढ़ाई एक साल के लिए ऑनलाइन होनी चाहिए। यूरोप, यू ऑल नो दीज आर द टू बिगेस्ट एपिसेंटर इफ यू सी ऑफ दिस क्राइसिस। छोटे बिजनेसेस कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं। एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, इवेंट, सब होटल शट डाउन है। न्यू स्मार्टफोन्स जो आने वाले थे, दे आर ऑल बीन डिलेड। ऑन साइट वर्क सब शॉर्ट टाइम के लिए। इंटरनेट बैंडविड्थ हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है। बट आज याद रखिएगा, जितना भी कह लीजिए, आज हमें टेलीकॉम कंपनीज का इतना अच्छा सपोर्ट है या नेटवर्क है भारत में कि हम आज कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वी शुड बी थैंकिंग देम। और जो एक टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी 5G जो लॉन्च हुई थी इन अ वेरी बिग वे, वो एक्चुअली डिले हुई है, राइट। नेक्स्ट, but I always believe let's look at long-term opportunities associated with it. Work from home is the biggest opportunity. Anyone or everyone who is trying to be आपके आर्ट वाले स्किल जो है, शायद प्रेजेंटेशन एक बार हो जाए, इसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। So please do not use these whatever you are creating, right? Remote working will go up, और ये हमें अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखना है, याद रखिएगा आप लोग। हेल्थ सर्विसेज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और मैं आपको इन पहलू के बारे में क्यों बोल रहा हूं, समझिएगा ये आप कि आज आप जिस बच्चे को अपनी क्लासरूम में ट्रेन कर रहे हैं, वो बंदा या वो बच्चा फ्यूचर वर्कफोर्स में जाने वाला है। हमें उसको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, हमें उसको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दिखानी पड़ेगी। देख सकते हैं अभी चीजों को, हम छोटे दर्जे पे नहीं दे सकते चीजों को, हमें उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, राइट। तो कोई भी बच्चा जो साइंस में अपना फ्यूचर बढ़ाना चाहता है, बहुत बड़ी हेल्थ सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली। एजुकेशन इंडस्ट्री आप देखिए कितना ब्यूटीफुली, चाहे वो सेज स्कूल हो, चाहे जितने भी लीडर्स अभी आज मेरे साथ यहाँ पर हैं या आईपीएन में हमारे साथ हैं, उन्होंने कितनी काबिलियत के साथ, मैं बोलूंगा, मैं उनकी बढ़ाई करना चाहता हूँ हर व्यक्ति के। उन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री ने कितने सीमलेसली, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी, मैं उनकी आई एम कमेंडेबल, आई मीन आई रिस्पेक्ट देम, माय रिस्पेक्ट हैज गॉन मेनी फोल्ड अबव इफ आई मे से कि इंडस्ट्री। भारत में 250 मिलियन बच्चे हैं जो आज स्कूल के थ्रू इम्पैक्ट होते हैं, याद रखिए। तो अगर मैं बोलूं, अगर वो 250 मिलियन बच्चे, मतलब 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ बच्चे, 25 करोड़ बच्चे भी अगर वो इम्पैक्ट होते हैं, तो याद रखिए भारत की ऑलमोस्ट 1/20th ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गेट्स इम्पैक्टेड। तो भी एजुकेशन वालों ने, जहां आज फी का मसला इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मतलब वो काबिल तारीफ है। हम तो आईपीएन पे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। हाउ एजुकेशन इंडस्ट्री हैज मूव्ड ऑनलाइन, दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। मतलब 60 दिन के अंदर आप देखिए आज स्कूल्स कितनी बढ़िया तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं मतलब इट इज कमेंडेबल। लैपटॉप्स, मतलब आज अगर आप हार्डवेयर की बात करेंगे तो बहुत लोग, आप लोग शायद इस सेशन को भी मोबाइल पे देख रहे होंगे, बट मुझे मालूम है कि आने वाले समय में अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाना है या आपको अपनी डिलीवरी ऑफ लर्निंग रोबस्ट रखनी है, सो आई एम श्योर यू all will, the institution or even the teacher of an institution will invest in themselves by buying right devices for themselves. I'm sure you will. You cannot do this teaching on a I cannot host this session on my mobile. I cannot. I really believe so. Okay. So if your teaching needs to become effective, I have done a research and I have found out that sadly right now 50 to 60 or in fact more than that percentage of teachers do not have a laptop, which is in a way a big opportunity. And IPN इस माध्यम में भी कुछ काम कर रहा है। होपफुली बहुत भी हम एक तरफ से न्यूज़ सुनेंगे जो आप तक भी पास ऑन होगी और सेज वाले भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज, अगर आप जानते हो, क्लाउड से मतलब मेरा ये है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अगर आप देखें क्लाउड, यानी कि आपको कुछ भी चीज फिजिकली अपने पास नहीं रखनी,
आप कुछ भी फाइल्स को सेव कर सकते हैं. नीलम जी, would you like to see who is this being very creative? This is distracting. I would request whoever is doing it, please, you can leave the meeting. Please leave the meeting rather. मुझे ऐसा, I'm sure आप we all are from a very distinguished background, right? So I will request, I can do very well. मैं बिना आपके इसके करने के बावजूद भी मैं इसका कर सकता हूँ, but मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कृपया ऐसा ना करें. It doesn't go well with your, आप टीचर है, टीचर को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, so कृपया ऐसा ना करें. Okay? There is an option of figuring out. मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपका नाम फिर अनाउंस करूं यहाँ पर. मैं भी पता लगा सकता हूँ कि that who is doing this. Okay? My humble request, please do not. If you don't want to be part, चलिए never mind, ये सब चलता रहता है, याद रखिए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब सिखाता है हमको. ओके, मैं कुछ आपके सामने उदाहरण भी देना चाह रहा था इसके लिए. देखिए आप, ऐसी अपॉर्चुनिटी ने कैसे लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया. देखिए आप, महाराष्ट्र में आपने सबने एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी होगी मेरे ख्याल से. महाराष्ट्र कपल यूजेस दिस लॉकडाउन पीरियड to dig a well at home, his water in 21 days. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये. अभी इनफैक्ट ज्यादा पुरानी नहीं है, आप सभी ने मेरे ख्याल से होगा, इंटरनेट पे भी शायद देखा होगा इसको मेरे ख्याल से. तो अगर आप इसको इस स्टोरी के बारे में सुने हो, तो आई एम सेइंग, सी द वे these, if I call them, they are not very literate by the looks of it, yet they chose this as an opportunity in this lockdown and dug up an entire well. If I dig up entire well and 21 दिन में तो उन्होंने पानी भी ढूंढ लिया. तो बहुत बड़ी बात है ये, इसको बोलते हैं. बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, बट मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहूंगा. मेरा ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इंस्पायरिंग स्टोरी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. नीलम जी, एक ऑप्शन होता है, आप जाइएगा सो दैट यू कैन क्लियर द स्क्रीन. वो आप ही कर पाएंगे, या तो आप मुझे को होस्ट बना दीजिए. The option of creating me as a co-host. Sir, I have made you co-host. You can disable annotate, please. Done. तो मैं कर ड्रॉ जो, हाँ नहीं, यहाँ पहले तो मैं इसको क्लियर करने चाह रहा हूँ क्योंकि हर स्लाइड पे ये आ रहा है. I just wanted to clear this up. चलिए कर दिया मैंने, ठीक है. हाँ, never mind. चलिए नेक्स्ट. अब आप बोल रहे होंगे, देखिए कैसे ग्लोबल कंपनीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं. देखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है. अब आपको ब्रांड मार्केटिंग भी हो रही है, वो ऐसी हो रही है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स टू कॉकटेल्स. आज जब सोशल मीडिया मार्केटिंग, देखिए लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट हुए. इफ आई मे से, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बीइंग moving with the times, if I may say. You see this as an opportunity, nothing else. This same advertisement on your left was a regular advertisement which would have gone on a regular post or on the print ad. अब वही देखिए आप, जब राइट में उसको मैंने इम्प्रोवाइज किया, तो मैंने क्या किया कि आप यही टॉप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल्स पहन सकते हैं. So in a way, you will now buy something of this nature for yourself in a conference call as well, right? So interesting the way you see people have reacted to all this. फिर क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, जब क्राइसिस होता है तो क्राइसिस कैसे, यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्राइसिस एज वेल. मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप पिछले 100 साल को देखेंगे तो बहुत मेजर क्राइसिस भी हुए, बट हर एवरी फेलियर वाज वंस अ सक्सेस. देखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं सारी आपके लिए. 1997 में और 98 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था. आपको मालूम है कि ये उसी दौरान जो शैम्पू सैशेज होते हैं आज हम यूज करते हैं, ये पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुए थे, जब लोग अपने कंजम्पशन को कम करने लगे थे. उनका मानना था कि पैसे हमें बचाने हैं, तो they were not using say a big full bottle of say a shampoo, right? The sachets were the opportunity, and you know, after that, it's been now almost 20 years. Sachets are a very big opportunity, right? It's a big business opportunity, right? So see how, and please understand this, because you are a teacher, you will have to increase your repertoire bolte hain
को आर्सेनल भी बोल सकते हैं आप, आपको अपने टीचिंग का, आपको एग्जाम्पल्स ग्लोबल रखने पड़ेंगे अपने बच्चों के सामने, आपको बहुत अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। आपको रीड बहुत करना पड़ेगा। मैं तो चलिए मैं क्विजिंग में था तो मुझे पढ़ना, वो मेरा इंटरेस्ट है, बट हमारे जो 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 हमारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए वो इतने स्लाइस ऑफ लाइफ से प्रभावित होने चाहिए कि बच्चा उसमें इमीडिएटली कनेक्ट करे, राइट? सो चीजों, और ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं क्राइसिस को आपने गलत वे में प्रीएम्प्ट कर लिया या आपने उसको गलत वे से एड्रेस किया। आई एम श्योर अगर आपको मालूम हो 737 Boeing was one of the jumbo jets, इसको बोलते हैं इनफैक्ट, राइट? बिगेस्ट प्लेन एवर मेड इसको बोलते हैं। इट couldn't go well, वो क्योंकि मार्केट की उसकी जो नीड थी उस पर कभी एड्रेस ही नहीं कर पाया उसको जो बोलते हैं। ओके, सो as I said, there are n number of examples. There are examples I can give you, but my point is I'm trying to give you an understanding that how a crisis can be a major opportunity, and sometimes people take it completely wrong as well. You have to see both faces of the coin. Okay, so and today, if I may take this liberty of saying that I want to make you globally perspective driven teacher. This is our moment of becoming ourselves, no longer thinking, अभी आप सुन ही रहे होंगे, think global, act local, local बनाओ, बट मालूम है सबसे पहले जीत होती है यहाँ पर। अगर आपकी सोच ही संकीर्ण रहेगी या अगर आपकी थिंकिंग ही लिमिटेड रहेगी तो याद रखिए फिर आप कभी ग्लोबल नहीं बन सकते। और भारत के लिए एज अ कंट्री, और वो ऑब्वियसली हमारे टीचरों के ऊपर डिपेंडेंट है, आज हमारे पास मौका है अपने बच्चों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिखाना, ग्लोबल एग्जाम्पल्स देना, राइट? नॉट टू से कि उसको लोकली कॉन्टेक्चुअल नहीं करेंगे हम, बट हमें उसको स्टार्ट ग्लोबल करना है, उसको लेके अपने पास तक आना। So I move on to the next slide. Now, few important slides, or if I may say all are important slides, but then now I'm narrowing it down. I'm coming from global perspective to I will reach to you individually after that, right? So अभी आते हैं from global to अपनी society तक। इंडिया की बात करते हैं इसमें। Indian global edtech industry won't get a bigger moment than this. और मेरा कहने का मतलब है यार, ये चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ग्लोबल एडटेक से मतलब ये है कि आज हर एक स्कूल एक एडटेक स्कूल बन सकता है। यानी कि what is a full form or a combination of education, which we already do in schools, but can we bring a seamless integration of technology to it, right? So every school has that opportunity of becoming an edtech powerhouse, which is an education तो हम already impart कर रहे हैं, but how do we enable, if I may say, this is our time, this is our moment. Virtual experience will become the norm, दोस्तों. Physical will be an add-on. पहले उल्टा हुआ करता था, आप सबको मालूम होगा। Physical सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट था, आज वर्चुअल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और याद रखिएगा ये नॉर्म बनता रहेगा, ये नॉर्म बन जाएगा, याद रखिएगा। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये ही रियलिटी है। इसको हमें इस पे अब हमें इसके अंदर अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने आप। सिमुलेटेड क्लासरूम, सिमुलेटेड पार्टीज आप लोग कर ही रहे हैं। वर्चुअल सैम क्या है? वो सिमुलेशन है, समझिए आप बात। आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो चीजें। Simulated everything में वर्ल्ड जाएगा, याद रखिए। It's an everything will be on the backbone of technology. Simulation, everywhere you will find simulation. यानी कि एक फिजिकल का प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, right? Exactly a physical thing you will try to create it virtual. और याद रखिए virtual अब no longer a poor substitute. It is no longer a pure substitute. अब वो मेन हो गया है, अब फिजिकल सब्स्टिट्यूट है, ये ध्यान रखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, याद रखिए। ये एक एक पॉइंट अगर आप बोलेंगे इसमें, इनमें these are worth million opportunities in themselves, if I may say. Digital products, rich country, भारत अभी rich country नहीं है by the way,
वहां पे 7 डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं पर हाउस होल्ड। एच का मतलब होता है हाउस होल्ड। और अगर हम भारत के परिवेश की बात करें तो हमारे यहाँ इन पुअर कंट्री पर हाउस होल्ड, यानी कि 2 फोन या मैक्सिमम 2 लैपटॉप, 2 टीवी किसी के नहीं होती, बहुत रेयरली हमारे पास 2 टेलीविजन होंगे। बट मैं जनरलाइजेशन बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज बात कर रहा हूं। किसी घर में 4 भी हो सकती है, वो नहीं बोलेगा नहीं हमारे तो 4 टेलीविजन है। और ऑन एवरेज भारत में 2 डिवाइस होते हैं पर हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। ओके, सो सोसाइटी डिजिटाइज होगी, ये समझिए बात को, इंपॉर्टेंट है, हम साथ पढ़ेगा। स्कूल्स एडटेक स्कूल्स बन जाएंगे। अब वर्चुअल विल बी द न्यू नॉर्म, फिजिकल विल बी द एड ऑन, याद रखिए। सिमुलेटेड क्लासरूम्स, पार्टीज, ये सब न्यू नॉर्म है। सिमुलेट करिए हर चीज को। वर्चुअल इज नो लॉन्गर द पूर सब्स्टिट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिए। ये स्टेटमेंट मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है इस प्रेजेंटेशन का। वर्चुअल इज नो लॉन्गर द पूर सब्स्टिट्यूट, गाइस, अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्या रहेगा फिर न्यू नॉर्मल अगर बात की जाए? हमने समझ लिया अपॉर्चुनिटी है, हमने ये भी समझ लिया कि भाई डिजिटाइज होगा, हम ये भी देख के आ गए कि बड़ी डेंजर क्या है हमारे साथ। तो अब थोड़ा देखते हैं क्या होना चाहिए एक न्यू नॉर्मल, राइट? जैसा कि मैंने बोला था, अब हम सोसाइटी से उठ के आते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आपके लिए एज अ टीचर एक न्यू नॉर्मल क्या होगा या क्या होना चाहिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। वो हर प्रेजेंटेशन मुझे नहीं बताए कि मुझे क्या करना है, फिर वो ज्ञान होता है, प्रवचन होता है, राइट? इंडिविजुअल, आज हर एक टीचर जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ा हुआ है, मेरा मानना ये है कि आप अब आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपसे संबंध रखते हैं, और आपको उसको अपने टीचिंग, आपके प्रोफेशन में, आपके लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्त, अन्यथा ऐसे क्राइसिस आएंगे और चले जाएंगे, और हम उसको फिर वेस्ट, फिर हम ये बोलेंगे वी हैव वेस्टेड दिस, फिर हम ये नहीं बोलेंगे डोंट वेस्ट अ क्राइसिस। देन हम एक एपिलॉग लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे वी हैड वेस्टेड द क्राइसिस व्हिच वी हैड। ओके, आई एम श्योर वी विल नॉट वेस्ट इट, एंड आई एम होपफुल, एंड लेट्स डू दिस। पहला पॉइंट, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम पिछले 60 दिन से सुन रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं कि टेक सैवी टीचर्स बनना या होना क्या है। बट मैं आपको अभी उसकी परिभाषा थोड़ी सी देना चाहूंगा कि मुझे आपसे क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। याद रखिएगा कि आपकी परिभाषा में टेक सैवी क्या होता है टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, याद रखिएगा ये चीज। जितनी भी चीजें हैं वो सब इस पे ही बेस करती हैं कि मैं टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से कैसे अडॉप्ट करता हूं मेरे लिए। अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा टर्म है टेक सैवी होना। अरे कैसे हूं भाई मैं? क्या फेसबुक पे होना टेक सैवी होता है? नहीं। क्या जूम को यूज करना टेक सैवी होता है? नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए टेक सैवी? तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है। और जब आप पूछिएगा या फिर बोलिएगा कि सर ये जो मेरी टेक सैवी की परिभाषा है क्या ये सही है सर, तो हम लोग उसको आंसर करेंगे, राइट? बट टेक सैवी टीचर होना इंपॉर्टेंट है। Continuously learning new tools and techniques. अब आप फिर बोल रहे हो, आप सोचेंगे कि सर हम तो पहले से ऐसा करते थे, बट मुझे ऐसा लगता है आज इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। आज अगर आप देख रहे होंगे, जो मैं आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन प्लेस कर सकता हूं कि जो यंगर ब्रैकेट वाले टीचर्स हैं, टीचर्स हु आर इन देयर यंग अर्ली 20s और से अर्ली 30s भी अगर मैं बोलूं, वो इस पूरे चेंज में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इन अ वे। बिकॉज यू नो व्हाई? दे आर फॉर द फर्स्ट टाइम फीलिंग इंपॉर्टेंट कि उनकी जो लर्निंग थी वो आज इंपॉर्टेंट वे में इंप्लीमेंट हो पा रही है। आज उनके जो स्किल सेट थे स्कूल उस पर बैंक अपॉन कर रहा है, उससे है स्कूल।
सो वो पहली बार बड़े इंपॉर्टेंट फील कर रहे हैं, अगर आप देखिएगा। नहीं तो अभी तक वो क्या फील करते थे, अरे मैं तो जूनियर मोस्ट हूँ स्कूल का। अब आपका आपका लर्निंग मतलब आपकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में नंबर ऑफ ईयर्स से आपकी वक्त नहीं रखी जा रही है। अब आपकी पहली बार अब आपकी वक्त रखी जा रही है कि आपको आता कितना है उसके लिए, है कि नहीं। अब जो 30 साल वाला टीचर है जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई पर्सनली फील दे आर ऑन द बैक foot. No respect to them. They come from a very different era altogether, right? No different. So point is, even if you are having a 30 years of work ex, or even if you're having a 3 years of work ex, now your attitude should be about learning continuously new tools and techniques, which means after a 7th day or a 10th day, or after the 45 days of COVID crisis, which we are locked down, you, as I said, I was sharing with you in the very beginning कि मैंने कैसे अपने आप के अंदर 5 साल में जितनी मैंने लर्निंग नहीं करी होगी वो मैंने ये 60 दिन में कर ली, वो आपने भी की होगी, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज उसमें देखिए कि हमको उस लर्निंग को वहां छोड़ना नहीं है। अब ये हमारा न्यू नॉर्मल बनना है। यानी कि जो भी आज आप प्रोसेस कर रहे थे लर्निंग को अक्वायर करने के लिए, आपने जूम के बारे में जाना, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज करना जाना, आप उसको यूज करते रहिए, राइट। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। इसी कड़ी का ये पार्ट है। मैं आज तक कभी मैंने सेज स्कूल का नाम नहीं सुना था, बाय द वे, है ना। तो आज मेरे लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि आज आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अपना मेन फलक्रम बना लिया, आपने अपना मेन बेसिस बना लिया है कि भाई हम ग्रो कैसे करेंगे, जब तक हम ट्रेन नहीं होंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट आपके मैनेजमेंट को, आपके लीडरशिप को, मैं उनको जानता भी नहीं हूं फिर भी मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि उनकी सोच है जब ये उतना आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए यही मौका था दोस्तों, बहुत सारे स्कूल्स अभी भी इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। मैं आपको बताऊं, यंग स्कूल्स या यंग लीडरशिप जिन्होंने ये इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, उन्होंने कहा भाई हमें यही मौका है हमारे पास आगे बढ़ने का, मानना है। और ऐसे सारे स्कूल्स को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा जिन्होंने इस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके उसको लैच ऑन कर लिया। उसको उन्होंने कहा भाई अगर गौरव जी से, जैसे नीलम को मैं कभी नहीं जानता हूं, मैं कभी नहीं मिला नीलम जी से, बट आज कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा तो क्या मैं उससे मना कर दूंगा? नो, आई विल नेवर से नो टू देम। जो मेरे पास है मैं जितना उसको शेयर करूंगा, मेरा मानना यही है उतना अच्छा होगा। दैट इज द वे आई सी। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्स, एंड दिस इज फॉर एवरीवन across Sage and every other school who is doing this as there are a lot of them. मैं तो आपको आईपीएन के माध्यम से 100 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, शायद कुछ लोग यहाँ पर, मतलब कुछ मेरे डियर लीडर्स यहाँ भी आए हुए हैं, वो सब कर रहे हैं, बट क्या सभी कर रहे हैं? वो क्वेश्चन मार्क है। सभी नहीं कर रहे हैं, बहुत चुनिंदा लोग ऐसा कर रहे हैं। वो अभी भी कहते हैं ना, इसको बोलते हैं, दिमाग में थोड़े से हैरान हैं कैसे करना है इसको, क्या करना है इसको। बट यही मेरा मानना है कि बाकी जिनको समझ में आ गया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसको आगे बढ़ाइए, अपना एडवांटेज बनाइए। नेक्स्ट, टीचरों की बात हो रही है, याद रखिएगा अभी सिर्फ वर्चुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोफेशनल्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करिए। इनफैक्ट एक इसके बाद मैंने लीडरशिप के लिए भी स्लाइड रखी है, तो मैं उससे भी, मैं लीडरशिप भी बताना चाहूंगा। आई वाज अज्यूमिंग कि शायद लीडरशिप ही होगी, तो उनको ही बताऊंगा कि आप अब अपने टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ का मापदंड जो है वो चेंज कर दीजिए। ये बहुत अच्छे मौके हैं, देखिए याद रखें, नए प्रोसेसेस डिफाइन करने का ये बेस्ट मौका है। जो टीचर अपने आप को करेगा उसका अप्रेजल नहीं होना चाहिए। वो किस बिना पे अप्रेजल मांगता है? हर क्वार्टर में 3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उसको अक्वायर करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो ग्रो नहीं करोगे। बड़ा सिंपल है। इमोशन पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया फैक्ट पे चलती है। तो फैक्ट ये है कि अगर आपने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जिससे कि ग्रोथ होगी स्कूल की, सो हेंस यू आर एंटाइटल्ड फॉर इट, राइट। तो मेरा वही मानना है कि मैं टीचरों को अकाउंटेबल हेल्ड कराना चाहता हूं हमारी
और मैं मैनेजमेंट को अकाउंटेबिलिटी की मैट्रिक्स देना चाहता हूं, और मैं टीचरों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। जो टीचर अपने अंदर इन्वेस्ट करेगा वो ग्लोबल टीचर बन जाएगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो जाएगा उसका, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। वर्चुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पे जाइए, आई एम श्योर मैंने बोला ना, वो लिस्ट में आपको बाद में भेज दूंगा, आप चाहिएगा किससे कर सकते हैं सर, कहाँ से कर सकते हैं, वो बहुत अलग चीज है। पहले आप इसको अपने अंदर अडॉप्ट तो करिए कि मुझे ऐसा करना है। बहुत लोग अभी इसी को लेके सेंसिटाइज नहीं हो पाए कि क्या हमें करना भी है कि नहीं करना है। मेन है पहले आप इसको अडॉप्ट करिए। ये क्वेश्चन मैं यूजुअली पूछता हूं टीचरों से, कितने टीचर्स ट्विटर पे हैं, कितने टीचर्स लिंक्डइन पे हैं। और अभी अगर मैं यही बात कर लूं यहां पर, तो अगर मैं सबको देखना चाहूं, देखिए मैं अपने आप को देखूं, चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन ट्विटर एंड हाउ मेनी ऑफ यू ऑन लिंक्डइन, शो ऑफ हैंड, कितने लोग हैं हम लोग? एक, दो, 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 आउट ऑफ 146 शायद मेरे ख्याल से 10 या 15 लोग, मैक्सिमम 10 या 15 आप हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने वो बैटल में आप आगे चले गए मेरे बारे में। But having said this, so this is not an accusation presentation. This is a presentation to make you think harder of where you are already. How do we go to the next step, right? That is our intention. How do we become better from where? Why being on Twitter or why being on LinkedIn is important? As I said, we are talking about having a global perspective. अब मेरी दुनिया सीमित है, भोपाल में मेरे जो स्कूल में मित्र हैं वही मेरा पूरा यूनिवर्स है। अगर वो मेरा पूरा यूनिवर्स है तो फिर मेरे ख्याल से मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर सकता। If my perspective needs to be global, I need to be sharing with global teachers. I need to be interacting with global leaders. जैसे टीचर्स इंडिया में है, आई एम श्योर बाहर के टीचर्स की भी एक नाक दो आंखें होती हैं, वो कोई ज़ॉम्बीज नहीं होते, उनसे भी हम संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत क्लासिक उदाहरण देता हूं, आप कभी भी जाके एक बार जरा दिल्ली गवर्नमेंट के, जो दिल्ली गवर्नमेंट हमारी आप गवर्नमेंट है, उनके टीचरों का आप अडॉप्शन लेवल देखिए इस समय टेक्नोलॉजी का, शानदार। दे आर एग्जांपल ऑफ हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी टू बी अ बेटर टीचर, इफ आई मे से। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई ये 5 या 15 साल से कर रहे थे, उनको बताया गया, अब उस पर कर रहे हो, राह पे चलना तो आप ही को पड़ेगा ना दोस्त। यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। दैट इज टू बी डन बाय ईच वन ऑफ अस। वी कैन टेल यू समथिंग, टुडे इट इज मी और देयर कैन बी एनी अदर वन else for that matter, right? So I think आज के इस मीटिंग के बाद 48 घंटे के अंदर हम सभी को ट्विटर पे होना चाहिए, हम सभी को लिंक्डइन पे होना चाहिए। और क्या, मैं कुछ आपके रिएक्शन देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है तो कि आपको क्या मतलब 2 साल दे हम लोग होने के लिए? 48 घंटे इज मोर देन इनफ, एब्सोल्युटली। और याद रखिए, कोई भी चीज अगर टाइम बाउंड नहीं हो तो उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। If I have to do this presentation for the next 24 hours, you will say I will die, right? All of us will die. No, it has to be done in 40-60 minutes, right? Everything needs to be told in 60 minutes. Otherwise, it is not useless. It is useless for me because it doesn't coincide with my timeline. There are 200 things to be done with. Other than this, I have to do, right? So everything is time bound at the end of the day. ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए याद रखिए, ट्विटर और लिंक्डइन से बेहतर जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने एक पोस्ट किया था, शायद नीलम उसको जानती हूँ क्योंकि नीलम आईपीएन पे है हमारे साथ। हम लोग अब आईपीएन को ग्लोबल ले जा रहे हैं, यानी कि अब हम इसको इंडियन प्रिंसिपल नेटवर्क नहीं, अब हम इसको इंटरनेशनल प्रिंसिपल नेटवर्क बना रहे हैं। और वो हो चुका है उस पर काम, बाय द वे। इस समय मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक लीडर की पहली सबसे बड़ी काबिलियत क्या होती है कि यू हैव टू वॉक द टॉक। आई एम श्योर यू ऑल नो, अगर लीडर जो बोलता है उसको वो करके दिखाना पड़ता है, अन्यथा वो बोलते बहुत है सर, काम बहुत कम करते हैं। तो हमने जब उसके बारे में लॉन्च किया,
अब मैं आपको, देखिए शायद दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, ये देखिए आईपीएन का ग्लोबल चैप्टर, इनफैक्ट हमने इसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ही है वो सब कुछ, इट इज बीन लॉन्च्ड। और इस समय वर्ल्ड के, इनफैक्ट मॉरिशस से, अफगानिस्तान से, यूएसए से, यूरोप से हमारे पास करीबन 30 स्कूल लीडर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बहुत कम नंबर है, बट मैंने बोला ना, बूंद बूंद से बना है सागर। स्टार्ट तो करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं। जब हमने 5000 आज कर लिया आईपीएन में, इंडियन प्रिंसिपल नेटवर्क आज 5000 प्रिंसिपलों की उस पे है, बट ये चालू तो 0 से ही हुआ था 4 साल पहले, राइट? सो चालू हो गया है काम, उस पर स्टार्ट हो गया है मेरा कहने का मतलब। मैं आपको उस पर अपडेट देता रहूंगा इसके बाद। लास्ट पॉइंट, bringing global perspective to your classroom. Make your classroom innovation place for innovation and skill development, ma'am and teachers and my dear leaders, if I may say. रट्टा तोताफिकेशन छुड़वा दीजिए। मैंने आपको शायद बताया नहीं, मैं आपकी बहुत छोटे शहर से इन झांसी 290 किलोमीटर दूर है भोपाल से। शताब्दी पकड़ेगी तो 3.5 घंटे में भोपाल से झांसी आती हैं आप, है ना? तो मैं 12th तक आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल, एज आई सेड आई वॉज इन झांसी। तो बट क्या मैंने ये कभी एक्सक्यूज के तौर पे लिया कि झांसी में होके मैं ग्लोबल कॉन्कर नहीं कर सकता? मेरे स्कूल ने मुझे सिर्फ ये बोला, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर गौरव, you have to go and conquer the world. So this is for me, it was always about being ambitious in my approach. I know this is a very, very intrinsic matter. This is very much to do with my personality individually. But trust me, if we do not challenge our kids in our school to think global, they will never become global. दिमाग में सिर्फ एक वो सीडिंग डालनी पड़ती है, उसके बाद फिर उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको क्या ले जाता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं, थोड़ा डेरोगेटरी लगता है बट अच्छा लगता है, गधों में बैठोगे तो गधे बनोगे, ये निम्नलिखित है ऑलवेज। बट इफ यू विल बी विद द हॉर्सेस, यू विल बिकम वन ऑफ देम। इफ यू हैव टू बिकम अ हॉर्स, यू बी विद हॉर्सेस। एक और कहानी है, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, शायद आपको लगेगा थोड़ा सा, you know there's a very interesting story about 5 donkeys, and those donkeys used to be named themselves as average donkey, superior donkey, not so superior donkey, and a poor donkey. Now the interesting story, I'm sure you will understand that the common denominator is that everyone is still a donkey. Even a superior donkey can never be a horse. And why I'm making this analogy, let me tell you, you are some product of 5 people yourself with. I will repeat myself. You are some of 5 people you surround yourself with. Now, if you surround yourself with donkeys, you'll become one. And if you will surround yourself with horses, you will behave like one, even if you're a pony. Always believed in this thought. This is a very important thought in whenever I used to be in a group, and I'll tell you this, and I'm sharing this with all the leaders, I always chose my group which was better than me. Because not for the fact that I would develop an inferiority complex, just because I would learn from them. And I would raise my own bar every time. ये मैसेज तो जो मेरा लास्ट पॉइंट है, वही मेरा कहने का मतलब है कि जब हम अपने बच्चों की क्लासरूम को ग्लोबल बना देंगे, उनके चैलेंजेस अगर हम ग्लोबल बना देंगे या उनकी अपॉर्चुनिटीज अगर हम ग्लोबल बना देंगे, याद रखिएगा वो कभी भोपाल लेवल पे compete नहीं करेंगे लोगों से, फिर वो बोलेंगे वी compete at the global level. हमें उनके माइंड को, होराइजन को ब्रॉड करना पड़ेगा at the end of the day, because you are a global citizen. We all are global citizens, ma'am and sirs. Today, if there's an opportunity in Dubai, I can still apply there, right? If there's an opportunity in Hong Kong, I can still go and apply there and become a part. But before that, my mindset needs to be that
my personality needs to be that, my orientation needs to be that. So वो कौन ड्राइव करेगा? वो मेरा स्कूल ड्राइव करेगा। मेरा स्कूल वो मुझे मेरे लिए टेस्ट इनोवेशन का टेस्ट बेड, मुझे सोचने पे मजबूर करेगा। वो मुझे ग्लोबल सिटीजन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आईपीएन के माध्यम से मैं बहुत जल्दी आप लोग को मौका दूंगा कि ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम करिए। आप लोग कर रहे हैं लोग, और जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे। क्या रोकता है कि हम आपको, जैसे आप ये क्लासरूम कर रहे हैं, आप एक ऑस्ट्रेलियन बच्चों से बात करें, क्या रोकता है आपको? कुछ नहीं रोकता, राइट? इट इज जस्ट अ मेंटल फ्रेम ऑफ, यहां जीतिए पहले, बाकी जीत हो जाएगी फिर। इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव एट द एंड ऑफ द डे। आप क्या सोचना चाहते हैं, राइट? तो गुड, आई होप आई एम नॉट बोरिंग ऑल ऑफ यू। अगर बोर कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल बिकम क्विक इन माई डिलिबरेशन। Having said this, I am assuming we will move very fast now, and जो मैंने स्कूल लीडरशिप के लिए बोलना चाहा था, लीडरशिप से मेरा मतलब होता है प्रिंसिपल स्कूल के, ओनर स्कूल के। बट याद रखिए, एक और चीज मैं आपसे बोलूंगा, शायद आज उस परिभाषा को चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आज रिसेंटली सुना, हर क्लास में टीचर उसका लीडर होता है, उस क्लास का। तो आप सभी लीडर हैं। ये सिर्फ प्रिंसिपल मैम के लिए नहीं हो रही है बात, या सेज ग्रुप के ओनर के लिए बात नहीं हो रही है, ये हर उस टीचर के लिए बात हो रही है जो अपनी क्लास को लीड करना चाहता है। तो अब वो सारे पॉइंट जो अगर आप देखेंगे, वो आप सबसे, मतलब मेरे लिए भी वो इतने एप्लीकेबल है, वो आपके लिए भी उतने एप्लीकेबल है कि बी रेडी फॉर हेल्दी मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इस चीज को कंठस्थ कर लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन की अभी भी बैटल में फंसे पड़े हैं, और आप अभी भी ये बोल रहे हैं, अरे नहीं भाई, अभी 3 महीने बाद हमारा स्कूल तो बड़ा थ्राइविंग और चहचहा के, मतलब उड़ पड़ेगा, नहीं होने वाला, ये नया नॉर्मल नहीं है। ऑनलाइन की अपनी बहुत खूबियां हैं, उसको अडॉप्ट करिए, उसको नया नॉर्मल बने। और बाय द वे, ये को एग्जिस्ट करेंगे, समझिए बात को। इट्स अबाउट बीइंग को एग्जिस्टेंट, राइट? कोई एक के ऊपर सुपीरियर नहीं है। आपको भी मालूम है, ऑनलाइन इज नॉट सुपीरियर टू ऑफलाइन एंड ऑफलाइन इज नॉट सुपीरियर टू ऑनलाइन। ये बैटल नहीं लड़ाइए। Let's not fight these unwanted battles that I personally feel. There's no point fighting these battles. The smarter one is who says, let me search out a middle path. And the middle path is a hybrid of this. Hybrid of online and hybrid of offline. Those are the global leaders. वो व्यक्ति ग्लोबल बनेगा जो इसका हाइब्रिड बनाएगा। ओके? मेरे टीचरों के लिए सेकंड पॉइंट है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 21 सदी की बैटल 19 सदी के मेथड से नहीं जीत पाओगे। If you go in a battle, you better have the arsenals for it. If you don't have the arsenals, so example, I cannot fight today's war with bow and arrow, right? I cannot. So which means I have to invest in myself, or the leadership has to invest in the teachers, which is what? That I have to professionally uplift them. I have to lift their skill set. टीचर मेरे हिसाब से इस कंट्री का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट हमारे यहाँ का टीचर है। अगर भारत के टीचर अच्छे हैं, मतलब इक्विप्ड हैं, तो याद रखिए, हाँ नीलम जी, हाँ जी, we want to give you certificate. तो नीलम ने मुझे हरी झंडी दे दी है, सर 5 बजे खत्म करना था, तो मैंने कहा बिल्कुल हो गया। तो हैविंग सेड दिस, मेरा वही कहने का मतलब है कि अगर हम अपने टीचर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मेरा वही मानना है कि फिर ये बैटल हम लूज कर चुके होंगे। बिल्डिंग रोबस्ट ऑनलाइन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग complementing the campus learning. अगर आप देखें, building a robust online learning ecosystem complementing your on campus learning, यानी कि फिर वही बात, फिजिकल एंड ऑनलाइन का एक समावेश बनाना। इस पे चाहे हम लोग को टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लीडरशिप लेवल पे करना पड़ेगा।
school developing a strong online and offline communication engagement program for parents and other key stakeholders. बहुत important था. आप सभी को मालूम है आज जो ये फी वाला मसला है ये बहुत ज्यादा ओवर द टॉप चला गया, जो मुझे लगता है इतना नहीं जाना चाहिए था इसको. मतलब किसी भी स्कूल को या किसी भी लीडरशिप को यहाँ तक पहुंचना नहीं था कि वो ये बोलते कि हम फी पे नहीं करेंगे. आई पर्सनली फील ये अगर हमने पहले से एड्रेस करके रखा होता, मेरा कहने मतलब है अगर हमने एक पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एंगेजमेंट बनाए रखा तो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं. मुझे ऐसा लगता है. तो ये मेरे लिए लेसन है और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आज के बाद से अब हम इतना रोबस्ट कम्युनिकेशन डेवलप कर लें इन अपने पेरेंट्स के साथ कि वो हमारी हर चीज को जाने कि हम ये क्यों कर रहे हैं और उसका फायदा क्या होगा. उनको इसका पार्टी बनाइए. कभी नहीं आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा. नेवर एवर विल यू फेस दिस चैलेंज इन द फ्यूचर. ओके, मेरी एक जो लास्ट बेसिकली स्लाइड है वो ये बोलती है वो बड़ा कि ध्यान रखिए ये सब चीजें बिल्कुल बेईमानी है अगर हम लोग इसको एक आप देखें अगर इसको हम लोग एक कल्चर में डेवलप ना करें. तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे आप जो भी बात करें, मैं आपको सच बताऊं ये सब एक कल्चर का पार्ट होता है. ओके, कल्चर से मेरा मतलब ये है culture of online teaching, culture of communication, culture of developing teachers. These are all cultures. आपको अपने स्कूल में कल्चर डेवलप करना पड़ेगा और कोई कॉपी नहीं कर सकता कल्चर को. याद रखिएगा आपके स्कूल का यूनिक कल्चर कोई कॉपी नहीं कर सकता. यही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लीडर इंपैक्ट करता है. याद रखिएगा आपके पास सिर्फ एक आपका एज ए लीडरशिप जो स्टाइल है वो कभी कोई नहीं कॉपी कर सकता. बट इन्वेस्ट करिए उसको कल्चर डेवलप करने के अंदर. अपने स्कूल में कल्चर बनाइए और कल्चर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, समझिएगा. ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये 3 महीने में डेवलप नहीं होता, इसमें साल लग जाते हैं. बट अगर आपने एक बार कल्चर डेवलप कर दिया, मैं आपको ये आप में से अगर लोगों ने अटेंड नहीं किया था, अभी मेरे साथ वनीता उपल मैम थी जो कि ब्रिटिश स्कूल की प्रिंसिपल है, हमारे साथ आई थी. ब्रिटिश स्कूल दिल्ली में जो है वो 30 साल से स्कूल के अंदर है और उनकी आधी से ज्यादा टीम 15 या 20 साल पुरानी है. तो ये क्या डिफाइन करता है ये मालूम है आपको? सिर्फ एक चीज, कल्चर है वहां पर. my final, if I may say, submission to you all, and as I said, I am still available. तो आप कभी भी मुझसे अगर संपर्क होना चाहें, कहने को हम लोग सब कॉल अवे है. मेरा ट्विटर भी ऊपर दिया हुआ है. आई एम ऑल्सो ऑन ट्विटर, आई एम ऑन लिंक्डइन. मेरा नाम GAURAVA यादव. आप सबको मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो सकता हूं और आपको जब भी लगता है कि यू हैव टू आस्क मी एनीथिंग, you can always get back to me. Okay, thank you very much. And because time is a constraint, I would like to stop myself and I will hand it over to Neelam. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was excellent presentation and excellent conversation with you. We would like to have you some other time also because we wanted to continue because of the time constraint. We are not. No, absolutely not. No problem. बिल्कुल. समय का जिसने समय की कदर नहीं करी उसकी किसी ने कदर नहीं करी. जी. Thank you so much, sir. Thank you. धन्यवाद. Take care, all of you. All the very best. Thank you, sir. Motivate in life with all your capacity. Take care. Bye bye.